Then 8 तारीख को he said complaint of some तबीयत खराब थे. Then he was declared a COVID patient on 13th. 17th को उनका निधन हो चुका. So I was talking to All India Radio Doordarshan directors. Why are you wasting the human lives by having live programs from your studio? Why don't you do some technology inventions? So I was thinking them. Then I got an idea that let's call it, in those days I was calling it remote broadcasting. Then I thought, one week back I saw a circular from Government of India. They are going to make even government servants work from home. WFH is a new norm, so that the public transport there won't be much of problem, and you will have more efficiency. जो ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा, ऐसा ऐसा करके गवर्नमेंट ऑल्सो थिंकिंग वर्क फ्रॉम होम. So today most of the broadcasting can be done from home. तो मेरे टीम में मैं ये बात करूँगा. I have some slides. उसमें वो इम्पॉर्टेंट है, हमने बातचीत करना है, डिस्कस करना है. Slides are only to give you an idea. Let me share my slides with you first, okay? Now I'm going to share my. Is my screen all right? Am I on the screen? Yes, sir. Right. Okay. Right. So let's call broadcasting from home, which is called BFH. Okay. It is not anything, something very rocket science, a new satellite, etc. Many people will be having team viewer, or there is any desk, or leave it alone if you are having a Windows computer. In your computer, Windows 10 onwards, there is a remote desktop. Only we have to use it. How to use it for broadcasting? Let's go. So remote desk where anywhere, anytime is any desk. Yes, it will take just 1 minute for you to download any desk. Okay. Just now, like we are using this Cisco system webinar or Zoom webinar, any desk also will give you a code number and a password. You share it with anybody, you can share it. For example, today, right now, you are seeing my desktop. Whatever is in my computer, I am playing it from my computer, and all of you are seeing it. This is what broadcasting from home. Okay, this is what broadcasting from home, which is called remote desktop. Team viewer is for Mac or Windows. You can download this also. There are hundreds of software. These are common. Team viewer or any desk. Okay. Remote desktop is on our Windows 10 PC. If you just go to the search box or the taskbar, you can find remote desktop. And you can connect any computer in the world, and then you can edit their computer. This was used to edit their computer or put a remote software into the computer. But now we are going to use these tools for broadcasting. See, remote desk, if you download, on the left hand side you will find this. There is an address 132.684.192. So you set a password for it and convey it to the other person. Both of you can share your computers. Okay. There is a new software which has come, like Anchor.fm, which I am going to demonstrate to you on the web now. I have created a radio station which is broadcasting from home. Broadcasting from home need not be community radio. Broadcasting from home need not be All India Radio. You can have your own radio station. This is a small software which has just come. I am now clicking it here. Come.
see how it comes. Okay, you will find, yes, wait, I'll try to make it bigger. You will get a full certificate, okay? I created my own radio station called Satyavani by Sridhar. It's for my university. I just created only 2 days back. I'm going to play something to you, okay? You're listening to Satyavani, the voice of the APJ Satya University, India's first liberal arts and meta university. For further information, please visit our website university.apj.edu. नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो सत्यवाणी, द वॉइस ऑफ एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी। मैं आकांक्षा आपके लिए लेकर आई हूँ कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया सेमका द्वारा निर्मित रेडियो एनेबल्ड सर्टिफिकेट कोर्स भारत में सामुदायिक रेडियो ध्वनि तरंगों की सामुदायिक यात्रा। कैसे चलता रेडियो और कैसे चलते गाने हैं जो लोग रेडियो पर बोलते। Okay, I'm closing this and sharing a keynote. I hope all of you heard the program. Is it? DP Singh ji? DP Singh ji? DP Singh ji? Anybody? Hello? Sher Singh, did you hear the program? So we can hear you. सुन लिया सर सुन लिया Program सुन लिया ना? I was broadcasting an audio program on the anchor.fm dashboard. Jitender, ठीक है? Okay. सुन लिया सर अच्छा है Okay. Next slide में. Okay. Let me go to next slide. If I go to the dashboard here, okay. You just have to have a login, email and password, and then you will be able to go and do your own broadcasting, okay? So simply get access to desktop from our use for broadcasting, create playlist sitting at home. You can have a desktop playlist, record your announcement, interviews and discussions using your phone. So what I'm saying is working from home means just have this earphone like what I'm using now and have a microphone and record it in your phone. And software like anchor.fm gives you record, edit and upload. Only 3 menus. Register, record, edit, upload. Okay. Phone in and phone out through your mobile phone and record them. And in work from home, we are all using WhatsApp. We are all using Facebook Messenger. Okay. So why not use it for broadcasting? Sitting at home. You can have a conference call, whatever we are doing it, and now in Cisco video, we can do it. Another call. Hello. Wherever you are doing spoken word program, and then you can it from your own desktop at the remote place, and you can edit it at software, save the audio on your laptop, copy the program, include it part of a playlist. At least one person must be in the studio or transmitter end if you are having a community radio. If you are not having a community radio, if you are having it your own broadcasting, you don't need anybody at the studio transmitter. We don't have to lose people for COVID. Just like that, opening the studio and asking somebody to open it, record things, and then
take photographs and put it on Facebook. We don't have to lose lives. And you can also use Zoom audio. You have Skype. You have FaceTime. If the okay, people will say I don't have internet. My internet is very low. How will you broadcast from home? Everybody has a chat option, and you have got SMS messaging. You have got audio SMS messaging now. Therefore, even if you don't have remote your internet facility, you can still have broadcasting from home using chat and SMS messaging. And broadcasting from home is very safe. And that's the small basic thing I want to say. And then I want to discuss with you uh, this one. I want to discuss with you more rather than giving any theoretical, bookish type presentation to you. But the only point I want to make clear is please do not have the old concept of All India Radio, Doordarshan, by sending somebody to studio, opening the studio, switching on the transmitter, asking somebody to come to studio, record them, and take a photograph and all. Please forget about it till the COVID is there. Till COVID is there, we should have methods to broadcast from home. Now you can ask me questions. Or the other speaker, Jitendra and Pooja, is also there. सर आपसे निवेदन है सर पहले पूजा और पूजा जी और जितेंद्र जी से I agreed, IG, GP Singh ji. Yes, sir. You can call any one of them to talk. रखें मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आपकी इजाजत से जितेंद्र जी को जितेंद्र जी प्लीज आप अपनी बात को कि हम ब्रॉडकास्ट फ्रॉम होम इस कंसेप्ट को सर ने जैसा गाइड करा उसको किस प्रकार हम ले जा सकते हैं। आप एक रेडियो स्टेशन का संचालन कर रहे हैं और वहां से आपकी आवाज बहुत कम आ रही है डीपी सिंह सर। मैं इशारों से समझा हूं कि आप जो कहना चाह रहे हैं कि मैं प्रेजेंटेशन करूं, हालांकि आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आप प्रेजेंटेशन Correct. Whatever you say, correct. जी शेयर स्क्रीन का ऑप्शन कहाँ पर आता है? आप कोई मेरे हाँ ये रहा नहीं, शेयर कंटेंट मींस शेयर स्क्रीन। वही है। जितेंद्र जी जी एक छोटी सी हम लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाई है, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। काफी लोग मुझे जानते हैं, लेकिन काफी लोग जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि 2008 में हमने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी विदिशा में, यानी मध्य प्रदेश के विदिशा डिस्ट्रिक्ट की एक छोटी सी तहसील है सिरौंज, वहां पर हमने रेडियो स्टेशन स्थापित किया था। थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं, हम लोग लगभग 300 विलेजेस को कवर करते हैं। ये काफी बड़ी संख्या है, लेकिन वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से कहीं कहीं हम लोग 20-25 किलोमीटर जाते हैं, कहीं कहीं 40-4। सिरौंज, लटेरी, कुरवाई, नटेरन, शमशाबाद और गंज बासौदा तहसील को हम कवर करते हैं। हमारे प्रोग्राम जो यूजुअली नॉर्मली कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस पे चलते हैं, उसी तरह से हमारा भी प्रोग्राम चलता है। सुबह 8 से 11, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक, और इसमें फोन इन कार्यक्रम भी होता है, फोक सॉन्ग भी होते हैं। और क्योंकि हमारा जो रेडियो स्टेशन है वो एग्रीकल्चर पर फोकस्ड है, तो इसलिए एग्रीकल्चर से संबंधित ज्यादा जानकारियां हम लोग अपने रेडियो स्टेशन से ब्रॉडकास्ट करते हैं। अब आज के टॉपिक का सवाल है कि हम घर से किस तरह प्रसारण करें। तो मेरे लिए घर से प्रसारण करना कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि मैं 2000 हेलो Jitendra, your screen is empty. Your screen empty. You are not sharing it properly. ओके अरे शेयर स्क्रीन के ऊपर शेयर क्लियर ना, then you open your presentation.
Yes, it's coming away. Have a full screen. Have a full screen. ठीक है सर। एकदम हेलो। एकदम सही है, एक ठीक है। ठीक है सर, तो ये जो अब तक मैंने बता दिया, किसानवाणी सिरोंज मध्य प्रदेश के विदिशा डिस्ट्रिक्ट में लगाया हुआ है हम लोगों ने 2008 में। और इसकी कवरेज जो है वो 300 गांव लगभग हम लोग कवर करते हैं। और ये एक बड़ी संख्या है, क्योंकि आमतौर पर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में इतने गांव कवर नहीं कर पाते। पर वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से हम लोग कहीं कहीं पर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जा रहे हैं, और कहीं कहीं पर 6 किलोमीटर तक नहीं जा पा रहे। हमारा जो नॉर्मल प्रोग्राम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पे चलता है, आप सभी कम्युनिटी रेडियो से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको पता ही होगा कि फोन इन कार्यक्रम होता है, हम लोग फोक सॉन्ग्स करते हैं। क्योंकि हमारा रेडियो स्टेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग एग्रीकल्चर से प्रोग्राम ज्यादा ब्रॉडकास्ट करते हैं। जैसा कि आज का विषय करें, ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम होम, तो ये मेरे लिए कोई बड़ी और नई बात नहीं है, क्योंकि मैं 2014 में सिरोंज से निकल के दिल्ली अपने हेड ऑफिस आ गया था, और मुझे 2014 से ही वर्क फ्रॉम होम कम से कम रेडियो स्टेशन के लिए करने का अनुभव है। तो इसलिए मेरे लिए लॉकडाउन में रेडियो स्टेशन को घर से चलाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। तो अब तक जो मैंने यूज किया है वर्क फ्रॉम होम से, हम 2014 में यूज किया था। हम लोगों ने गूगल का जो नॉर्मल मेलिंग सिस्टम है, मेल करते थे हम लोग, लेकिन उसमें एक समस्या ये आती थी कि 25 MB तक की जो फाइल है वो तो हम दे सकते थे, उसके बाद गूगल ड्राइव की परमिशन मांगी जाती थी। तो हमने बहुत दिनों तक गूगल ड्राइव से अपनी जो प्रोग्राम थे जो मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किए, वो सिरोंज पर भेजना शुरू किया। उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया यूट्यूब का माध्यम। यूट्यूब पर हम लोगों ने, क्योंकि उसमें यूट्यूब में हम लोग कितनी भी बड़ी फाइल अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी समस्या ये आती थी कि उस समय जब हम लोग ये शुरू कर रहे थे 2015-16 में, उस समय इतना यूजर फ्रेंडली नहीं था यूट्यूब भी। और कभी कभी ये होता था कि हमारी जो ऐसी रॉ फाइलें भी पब्लिक हो जाती थी जो हम पब्लिक नहीं करना चाहते थे। तो फिर हम लोगों ने यूट्यूब को भी उस समय बाय बाय किया कि हम यूट्यूब पर नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने यूज किया सेंड स्पेस और वी ट्रांसफर, जिसे हम आज भी यूज कर रहे हैं। सेंड स्पेस उस समय हम लोगों को 1 GB तक की परमिशन देता था फ्री ऑफ कॉस्ट। सेंड स्पेस आजकल नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम आजकल सेंड स्पेस यूज नहीं कर रहे। हम लोग यूज कर रहे हैं वी ट्रांसफर। वी ट्रांसफर एक सॉफ्टवेयर ऑनलाइन वेबसाइट है, जिस पर आप 2 GB तक की फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं, और उसका एक लिंक बन जाता है, और सीधा आप जहां पर भी इसको जिस मेल पर आप देंगे वहां पर उस लिंक के थ्रू वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो अभी हम मोस्टली वी ट्रांसफर का यूज कर रहे हैं। और आपस में जुड़े रहने के लिए 2014 से लेके अब तक, आज भी हमारे अंकित जी इस समय जुड़े हुए हैं रेडियो स्टेशन से। MD नाम से उनका नाम आ रहा है। अंकित, आप हो अभी इस पे प्रोग्राम में? अंकित अंकित इस समय जुड़े हुए हैं, और वो टीम व्यूअर से हमारे साथ 2014 से ही जुड़े हुए हैं। मुझे टीम व्यूअर से अच्छा कुछ और सॉफ्टवेयर नहीं लगा, और तो इसलिए मैं टीम व्यूअर के माध्यम से ही अपने से अब तक जुड़ा हुआ हूँ। लगभग हर रोज ही टीम व्यूअर के थ्रू मैं अपने रेडियो स्टेशन पर घूम आता हूँ। एक तरीके से देखा जाए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से रेडियो स्टेशन पर घूम आता हूँ लगभग रोज। कोविड के दौरान हम लोगों ने जो यूज किया, नॉर्मली हम लोग ये सब चीजें यूज कर ही रहे थे, मैं कम से कम, लेकिन कोविड के दौरान हमने यूज किया जूम ऐप का। क्योंकि जूम ऐप में हम लोगों को 40 मिनट तक का जो टाइम है वो फ्री मिलता था। तो हम लोगों ने रेडियो इंटरव्यू जूम पे करना शुरू किया, और हमारा मैक्सिमम 20 मिनट में इंटरव्यू हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने जूम का प्रयोग करना शुरू किया। जूम रिकॉर्ड किए, जिसे हमने यूट्यूब पर भी डाला। और यूट्यूब पे डालने का हमारा मकसद ये था कि हम जितने भी सक्सेसफुल फार्मर्स की स्टोरी कवर करते थे वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए, इसलिए हम लोगों ने यूट्यूब का सहारा लिया। यूट्यूब से 2 फायदे हुए। एक तो लोगों तक जो हमें रेडियो स्टेशन को नहीं सुनते हैं वो भी उन सक्सेसफुल फार्मर से मिल पाए, और हमारे रेडियो स्टेशन पर भी उसकी ऑडियो चल पाई, जो कि मैं यहाँ दिल्ली में बैठकर भारतवर्ष के अन्य जो हमारे सक्सेसफुल फार्मर्स हैं उनकी स्टोरी कवर करता था। अब
कोविड के दौरान हमारा, जैसे श्रीधर साहब ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है कि रेडियो स्टेशन पर हम ज्यादा लोगों को भेजें, तो कोविड के दौरान हमारा वन मैन शो चल रहा है, रेडियो स्टेशन पर है। और वो वन मैन शो, वन मैन आर्मी, आप कोविड वॉरियर कुछ भी कह सकते हैं अंकित जी को। अंकित जी ने अकेले ही अभी तक रेडियो स्टेशन चलाने में हमारी मदद की है। और साथ में अगर आप बात करेंगे तो कभी कभी हमारी जो वॉलंटियर्स हैं, रश्मि भंडारी जी हैं, मुकेश शर्मा जी हैं, श्रीराम यादव जी हैं, वो कभी कभी टाइम निकाल के, और जब परिस्थितियां जैसी होती थी, कभी वहां पर कर्फ्यू में ढील रहती थी, या कभी कभी लॉकडाउन का टाइम जो है खत्म कर दिया जाता था, तब वो जाके रेडियो स्टेशन पर रिकॉर्डिंग करते थे। मोस्टली हम लोगों ने क्या किया है कि व्हाट्सएप के जरिए, यहाँ से मैं भी अपने व्हाट्सएप के जरिए जिंगल्स, प्रोग्राम्स बना के अंकित जी को भेजता हूँ। साथ में हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो भी यूट्यूब व्हाट्सएप के माध्यम से छोटे छोटे ऑडियो मैसेजेस भेजते हैं। और हमारी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी खुद का एक यूट्यूब चैनल है, इंडियन एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स। उसके ऊपर जितनी भी स्टोरीज हम लोगों ने एग्रीकल्चर से रिलेटेड डाली हुई हैं, उनमें से भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम इस बार रेडियो स्टेशन पे चलाए, ताकि हमारा जो प्रसारण है उसके अंदर प्रोग्राम के में कंटेंट की कमी ना पड़ पाए। दूसरा, हम लोगों ने कोशिश की, हमारा जो किसान वाणी पेज जो है फेसबुक पर, हमने उस पर भी अपने जो रेडियो मैसेजेस हैं, या हम लोगों ने कभी कभी जूम कॉल के जरिए जो रिकॉर्डिंग की है, वो भी हम लोगों ने फेसबुक पेज पे डाली। फेसबुक पेज पे डालने का एक फायदा ये होता है कि हम लोगों को काउंट पता चल जाता है कि कितने लोगों ने हमारा वो वीडियो देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने व्हाट्सएप पे दोबारा का बहुत ज्यादा यूज किया है, क्योंकि कोविड से पहले, मतलब व्हाट्सएप पे 64 MB से कम की फाइल जो है हम भेज सकते हैं, और ये फीचर इन्होंने अभी व्हाट्सएप ने अपडेट किया है। इससे पहले हम और कम की फाइल भेजा करते थे व्हाट्सएप पे, लेकिन अभी थोड़े दिनों पहले ही व्हाट्सएप ने, या कुछ महीनों पहले ही व्हाट्सएप ने ये 64 MB तक का वीडियो ऑडियो भेजने के लिए अपनी जो लेंथ है वो बढ़ा दी है। तो ये व्हाट्सएप पर हम लोगों ने काफी प्रोग्राम शेयर किए। अंकित जी शब्द मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और ऐसा समझता हूं कि मेरे ख्याल से मैं 2014 से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं फॉर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। जितेंद्र जी, सर, आप ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम होम के पॉजिटिवनेस बात करने के टाइम पे यू आर लीकिंग आउट सम ऑफ योर सीक्रेट अबाउट नहीं, ये तो थोड़ा ध्यान से whatever you are saying, it will not be taken otherwise. Okay, you are doing good job. Okay, but one request to all the people who are here: never believe anything which is free. Today they will give you free, tomorrow they will reduce it or charge you, or they will put you advertisement. This free business should end in the country. Okay, there is somebody who is paying for it. Don't say that I am getting WeChat for free, I am getting Google Drive for free. It is all coming at a cost. And Google is the maximum. If you invest Google, you will get 100% return in 1 year. Okay, that much money is making. Therefore, please try to have a Indian software. Encourage Indian people who is doing engineers and technical people. Try to develop Indian software and use paid software. Okay? And that's my request. Slowly, our people, when broadcasting from home, should also start going to. Now, Zoom was popular. Now, Singhji is now putting Cisco WebEx. There are so many other things are coming. Okay, but everything because like Ola, Uber, they give you 3 rupees, 5 rupees in the initial stage. Drivers का 40,000 मिल रहा था. Today, all the drivers, they are taking 40% off from the Ola, Uber. First, they were giving 40,000 rupees. Okay. So, therefore, free to change कर दो आप attitude. That's what. Yes, Jitendra. Yes. सर, मैं चाहता हूं कि अंकित भी थोड़ा सा अपना 2-3 लाइन में शेयर करे कि कोविड के दौरान कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा रेडियो स्टेशन पे ब्रॉडकास्टिंग का। ठीक है। छोटा सा अंकित 2-3 लाइन में शेयर करो, आपने अकेले वहां पे रेडियो स्टेशन संभाला इस दौरान।
So we have to take care of the health of Ankit also. Okay. यस सर, यस सर. अंकित अपना अनम्यूट करो पहले. अनम्यूट है उनका जो अनम्यूट है उनका, और बोले अंकित आप बोलिएगा. ये हटा दो, हेडफोन हटा के बोलो. हेडफोन हटा दो अंकित. चलिए सर, जिनका जब आ जाएगी ऑडियो तब इनका सुन लेंगे. अभी आप कंटिन्यू करिए सर. मैं निवेदन करता हूं आपके हमारे ऑनरेबल स्पीकर पूजा मुरादा जी से. पूजा मुरादा जी, प्लीज आप जो ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम होम इस कंसेप्ट को किस तरीके से ले रहे हैं और इस दौरान आपने किस प्रकार ब्रॉडकास्टिंग की. पूजा जी. जी नमस्कार सबको. शुक्रिया डीपी सिंह जी, आपका सेकेंड टाइम आपके इस वेबिनार में मैं आई हूँ. सो थैंक्स फॉर दैट. हेलो श्रीधर सर एंड हेलो एवरीवन. Yes. Hello, Pooja. सो मेरे पास प्रेजेंटेशन तो नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहूंगी. अल्फाज़े मेवात कम्युनिटी रेडियो है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ये मेवात जिले में हम लोग पिछले 8 साल से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं. हम रेडियो स्टेशन कुछ 2.5 लाख लोगों तक पहुंचता है, जो कि 20 से 22 किलोमीटर की रेंज में है. 225 गांव हैं जो मेवात में, जहाँ पे ठीक अच्छा सिग्नल पहुंचता है हमारा, और 10 गांव हैं राजस्थान की साइड तिजारा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे हमारी रेंज पहुंचती है. वर्क फ्रॉम होम या ब्रॉडकास्ट फ्रॉम होम के संदर्भ में मैं ये कहूंगी कि एक हमारे कम्युनिटी रिपोर्टर के लिए उनका होम उनका विलेज है. सो ऐसा नहीं है कि वो 4 दीवारी जहां वो रहते हैं वो उसको घर कहेंगे. वो गांव में पहुंच गए तो मतलब वो घर पहुंच गए. तो एक ये ज्योग्राफिकल इमेजिनेशन थोड़ी मैं यहाँ पे ब्रॉड करूंगी. तो उससे बात आगे लेके जाते हुए कुछ जो पॉजिटिव हमने देखा है इस लॉकडाउन के दौरान, या ये जो चेंज ऑफ वर्क कल्चर आया है, इसमें कई हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, ट्रायल एंड हिट मेथड्स किए हैं, और मुझे पर्सनली जो काफी चीजें लगा कि एक आपने बैकएंड में जाके कई चीजों को में सुधार किया है. जैसे कि 6 फरवरी को हम लोगों ने पहला प्रसारण शुरू किया कोविड से रिलेटेड. तब ऐसे कुछ लॉकडाउन की स्थिति नहीं थी. सुनी सुनाई बात थी कि चाइना में ये बहुत फैल रहा है. तो हमारे यहाँ पे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उनके साथ बातचीत में ये निकल के आया कि एक एड्रेस दिया जाए. तो वो जो 6 फरवरी का हमारा पहला प्रसारण था हमारे जिले के सुपरिटेंडेंट के साथ, जो सीएमओ है, चीफ मेडिकल ऑफिसर के साथ, उस दिन से आज तक टिल डेट हम लोग कोविड-19 को एड्रेस कर रहे हैं. धीरे धीरे ये प्रसारण की अवधि बढ़ाई गई है. जो एक एक्सपर्ट इंटरव्यू से शुरू हुई थी बात, आज तकरीबन 2 घंटे, 13 घंटे में से 2 घंटे लगभग हमारा किसी ना किसी फॉर्म में अवेयरनेस जनरेशन या जो रिलेटेड नए प्रोग्राम्स बने हैं उस पे काम हो रहा है. अब ये जो इतना नया मैटर जनरेट हो रहा है, जो इतना हम लोग नए प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, ये वन साइडेड ना रहे, इसमें वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बना रहे, इसको ध्यान में रखते हुए फोन्स का बहुत, जो फोन इन सुविधा है उसका बहुत ध्यान रखा गया है. बहुत से ऐसे थे जो किसी ना किसी तरीके से हमारी संस्था जो है उससे जुड़े हैं, वो कम्युनिटी के पार्ट हैं, पर शायद कभी अपने आप को रेडियो के संदर्भ में आगे नहीं लेके आए थे.
आज की स्थिति ये है, क्योंकि बाकी सारे प्रोजेक्ट्स और जो प्रोग्राम ऑन ग्राउंड पे थे, अब वो थोड़ी धीमी गति से चल रहे हैं या काफी हद तक नहीं चल रहे हैं, तो वो कम से कम 150 लोग ऐसे हैं जो जिनकी तवज्जो जो है रेडियो स्टेशन पे है कि किस तरीके से वो अपने गांव या अपने जो कम्युनिटी है उसमें क्या हो रहा है या किस तरीके से वो हमारे प्रोग्राम्स में शामिल हो सकते हैं। वो एक नया ग्रुप इमर्ज होके आया है, ये एक हमने अच्छा देखा है। दूसरा हमारे साथ जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है, हम लोगों ने अपने लिसनर्स ग्रुप का एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है हमारा, जिसमें अगेन वन साइडेड कॉन्वर्सेशन ज्यादा होती है। हम लोग डालते हैं कि ये नया प्रोग्राम है या इस दिन ये आप सुने, ऐसे करके, बट सजेशंस बहुत ज्यादा लोग नहीं दे पाते थे। आज की डेट में वो एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो काफी रिवाइव हो गया है, मैं कहूँ। लोग उसमें अपनी भागीदारी देते हैं, लोग जानना चाह रहे हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। सो जो फोन इन के थ्रू हमसे नहीं जुड़ पा रहा है, वो रेडियो स्टेशन के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के अपनी बात रख रहा है। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन में जो हम लोग अंदर हैं, अंदर से भी हम लोग एक जुड़ाव बढ़ रहा है। जो हम लोग ओपन सिनेरियो में नहीं कर पाए वो अब हो रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने अपनी टीम के साथ, जो हमारे कम्युनिटी रिपोर्टर्स की टीम है, उनके साथ एक ट्रेनिंग सेशन शुरू किया। इट इज इम्पोर्टेंट कि जो सब लोगों की लर्निंग बढ़ती रहे, सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। तो ये ध्यान में रखते हुए बात शुरू हुई थी कि किस तरीके से हम प्रोग्राम्स को और इफेक्टिव बना सकते हैं खुलने के बाद, या राइटिंग स्किल्स पे। सो ये जो एक पूरी ट्रेनिंग का एक हमारा प्रोसीजर रहा है ऑनलाइन, ये सब टीम को एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कैसे की जा सकती है, कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सी जो मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग ग्रुप्स हैं, वो हमारे एरिया में जहां वो लोग हैं वहां पे अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, या नेटवर्क की सेम नेटवर्क में, जैसे एक जूम हमारे लिए काम नहीं कर रहा है इतना अच्छा मेवात के जिले में, पर जब हम मीटिंग्स को गूगल हैंगआउट पे लेके आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई। सबके जीमेल अकाउंट्स थे, तो हम लोग मोस्ट ऑफ हमारी मीटिंग्स जो है, ट्रेनिंग्स जो है, वो गूगल हैंगआउट पे होती हैं। सो ये एक नया एक्सपीरियंस था। उनका जो एक झिझक थी कि हम लोग इंटरनेट savvy नहीं हैं, या हम कैसे करेंगे अपने फोन के थ्रू, यदि घर पे हैं तो फोन के थ्रू हम कैसे अपने आप को अटैच कर पाएंगे वीडियो से। जी आप हेलो जी, पूजा जी, अब ऑडियो ऑन कर लेंगे ना तो ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। अभी सिर्फ मतलब वीडियो ऑन कर लेंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि अब सिर्फ ऑडियो सुनने दे रही है आप। मेरा वीडियो ऑन नहीं है? नहीं, अच्छा, मुझे अपना दिख रहा था। Am I visible now? अब ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि किस तरीके से नए नए एक्सपेरिमेंट्स जो हमने इस लॉकडाउन के दौरान किए हैं, जो हमारी सीख को बढ़ाया है, वो सब एरियाज को हमने टैकल किया है जहां हमको ये लगता था कि हम शायद इतने सही नहीं हैं। जैसे इंटरनेट savvy हम लोग इतने अपने आप को नहीं मानते थे, हमारे कम्युनिटी रिपोर्टर्स। सो जब करने पे आए हैं तो आज के दिन में व्हाट्सएप ग्रुप भी रिवाइव हुआ है, गूगल हैंगआउट्स पे ट्रेनिंग सेशंस कैसे दिए जा सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन कैसे शेयर कर सकते हैं, वो सब आपने कई नई चीजों को एक्सपीरियंस करा है और सीखा है। इसके अलावा फॉर्मेट्स, ये भी एक काफी चर्चा का विषय रहा हमारी टीम में कि अब अगर हमने फील्ड नहीं जाना तो किस तरीके से हम इंश्योर करें कि हमारे जो फॉर्मेट्स हैं अलग अलग ही रहें, ताकि
ना हो, या हम सेम ही चीज, एक इंटरव्यू चल रहा है तो सब प्रोग्राम सिर्फ एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू ना हो, तो उसमें भी काफी एक्सपेरिमेंट्स हुए, एंड घर बैठे हुए ही फोन के थ्रू कनेक्ट करके आप अलग अलग आवाजें अपने प्रोग्राम्स में हम लेके आए हैं। फोक आर्टिस्ट भी वैसे ही जुड़े जैसे वो स्टूडियो में आके जुड़ते थे, आज फोन के थ्रू। उनका जुड़ाव हमसे टूट गया है। पूजा जी, हेलो 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 हेलो, पूजा जी, किसी की आवाज आ रही है? हेलो पूजा जी, शायद आपकी आवाज मिस हो गई है। अंकित जी, आपकी आवाज आने लगी क्या? माइक अनम्यूट करके बोलिए। हेलो। आप बोलिए। हाँ अंकित जी, आपकी आवाज आ रही है। जी सर। डीपी सिंह सर, आपसे अनुरोध है, जब तक पूजा जी कनेक्ट नहीं होती हैं तब तक अंकित जी थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर लें। जी सर, धन्यवाद सर। सर मैं अंकित राजपूत। रुको अंकित, रुक जाओ, अभी डीपी सिंह जी बोलेंगे तब। कंटिन्यू करिएगा। जितेंद्र जी बिल्कुल ठीक है, अंकित जी को बात करिएगा। अंकित, आपने कोविड-19 के दौरान किस तरह से ब्रॉडकास्टिंग की, थोड़ा बताएं हम लोगों को। जी सर, धन्यवाद सर। मैं अंकित राजपूत, रेडियो किसानवाड़ी सिरोंज में प्रोग्रामिंग हेड, जो कि सिरोंज विदिशा मध्य प्रदेश में है, उसमें हूँ। तो सर कोरोना महामारी में, क्योंकि आपके द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम हम लोगों के लिए रेडियो पर पहले से ही आते थे, और जब से कोरोना का प्रकोप बढ़ा है, तो तब से घर से प्रसारण जो शब्द है, इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि आपके आप जो पहले प्रोग्राम भेजते थे, आपके द्वारा भी प्रोग्राम हम लोगों के पास आए हैं। कुछ प्रोग्राम कोरोना में हमने सिरोंज के ही जो हमारे अधिकारी हैं, प्रशासन है, चाहे डॉक्टर हो, एसडीएम हो, एसडीओपी हो, विभिन्न प्रकार के अधिकारियों से जानकारी ली और उनको रेडियो के माध्यम से प्रसारित किया, और यहाँ पर समुदाय में भी यहाँ पर वह आवाज गई, और लोगों की प्रतिक्रिया भी आई सर उसमें। और जो हमारे वॉलेंटियर हैं, तो उनके द्वारा भी समय समय पर गांव से अगर कोई घटना घटती है, तो उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। और अभी 3 से 4 दिन पहले की मैं आपके लिए बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो एक लोकल सिरोंज में ही एक गांव है, वहाँ पर हमारे एक बाबूलाल जी वॉलेंटियर हैं। तो वो विभिन्न प्रकार की जानकारी देते हैं, समय समय पर गांव के बारे में भी अवगत कराते हैं। ऐसे में ही कुछ लोग जो इंदौर से आए हुए थे और उनमें कोरोना पॉजिटिव निकला, तो उन्होंने हमें सीधे तौर पर बताया, और वह जानकारी हमने रेडियो पर भी चलाई, और कि कोरोना का प्रकोप यहाँ पर है। इसके अलावा सर आपके द्वारा भी विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम, उसमें चाहे कृषि से संबंधित कह लें, चाहे मिश्रित खेती से संबंधित कह लें, या फिर कोरोना से संबंधित भी प्रकार के आपने हमारे समय समय पर विभिन्न प्रोग्राम पहुंचाए हैं, और उन्हीं की एक छोटी सी झलक मैं आपके सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। तो अंकित जी कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए। नमस्कार श्रोताओं, किसान वाणी सिरोंज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हम लोग आपको हमेशा रेडियो स्टेशन के माध्यम से कृषि से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां पहुंचाते हैं, और इसी कड़ी में हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे
युवा से जिन्होंने बीटेक किया हुआ है और वो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, उच्च शिक्षा भी प्राप्त की है और वो कृषि से जुड़े हुए हैं और कृषि में भी वो शहद उत्पादन के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे कार्यक्रम में हम सब उनका स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में विनय फोगाट जी का, जिन्होंने शहद के क्षेत्र में एक नाम कमाने का प्रयास शुरू किया है और प्रयास बहुत ही शानदार है। तो विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले किसान वाणी के सभी श्रोताओं को अंकित जी, थोड़े से टाइम को अपने को ख्याल रखना पड़ेगा और आपने बड़ा अच्छा ये तरीका करा। पूजा जी शायद वापस अपने प्रेजेंटेशन के साथ में जुड़ रहे हैं। पूजा जी जी माफ करिएगा, मैं अपने फोन से एक्चुअली कर रही हूँ और फोन काफी गर्म हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे वीडियो ऑफ रखना चाहिए, नहीं तो शायद बात फिर कट ना जाए। इज दैट फाइन? बोलिएगा। जी, so to continue with where I left, कि किस तरीके के हम फॉर्मेट्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस दौरान, जिसमें जो हर एक के स्किल निकल के आ रहे हैं। ये हमारे लिए भी इंटरेस्टिंग है जानना कि हमारे कुछ कम्युनिटी रिपोर्टर्स जिन्होंने कभी शायद पोइट्री ट्राई नहीं की थी, अब जितेंद्र जी आपसे इंस्पायर होके हमारे रिपोर्टर्स ने भी पोएट्री लिखना शुरू कर दिया है और उनको खुद ही नहीं मालूम था कि वो इतना अच्छा लिख सकते हैं। फोन इन कार्यक्रम तो हो ही रहे हैं, इसके अलावा कुछ रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने अब ये जाना है कि दे आर वेरी गुड स्टोरी टेलर्स। उनका जो कहानी कहने का और एक इमेजरी तैयार करने का तरीका है वो काफी उभर के आ रहा है। मैगजीन फॉर्मेट हम शुरू से करते थे और उस पे हमने शुरू से जोर दिया है, बट शायद मैगजीन फॉर्मेट्स में बाकी की चीजें कहीं आज तक शायद दबी रह गई, जो अब काफी निकल के आ रही हैं। फोक आर्टिस्ट जुड़ते हैं तो फोक का एक फ्लेवर आ जाता है प्रोग्राम्स में। इसके साथ ट्रेनिंग्स में जो हम लोगों ने ये ब्रॉडकास्ट फ्रॉम होम के दौरान खासकर एक अप्रोच जो हमने बनाई वो ये कि हम पॉजिटिव डेविएंस अप्रोच, यानी कि बहुत सकारात्मक, हर जगह नेगेटिव न्यूज और महामारी से रिलेटेड इतनी बात होती है तो कहीं कुछ पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो जितने कार्यक्रम हैं उसको हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर लिखें, स्क्रिप्टिंग हम इस हिसाब से करें और जो डिलीवरी है, प्रोग्राम डिलीवरी भी अगर सकारात्मक तरीके से प्रेजेंट हो तो उसका एक रिपल इफेक्ट जो निकल के आता है कम्युनिटी में वो काफी बढ़िया रहा है। जैसे कि आज का हीरो करके एक प्रोग्राम है, जब तबलीगी जमात से काफी लोग आए, मेवात के काफी लोग थे जो फिर वापस आए, तो उसमें लोगों को एक भय था कि अगर हमने अनाउंस कर दिया या अगर हमारी पहचान हो गई तो शायद हमको मालूम नहीं कहाँ रखा जाएगा या क्वारंटीन कैसा होगा, उसके जो भी उनके मन में भय था। तो वो किस तरीके से हैंडलिंग द फियर ऑफ पीपल की क्वारंटीन को लेके जो भी भावनाएं थी उसको आप किस तरीके से सकारात्मक तरीके से समझाना और किस तरीके से समझाना कि उनके न सिर्फ उनके लिए, उनके परिवार वालों के लिए कितना जरूरी है और सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं और किस उसमें कैसी फैसिलिटी सरकार ने दी हैं। तो वो सब बातें को लेके ये जो कार्यक्रम था जिसमें लोगों ने एक के बाद एक आके अपने कॉल्स के थ्रू रिकॉर्ड किया कि वो क्यों है आज के हीरो, उन्होंने क्या वो बदलाव लाया है अपने अंदर टू अबाइड द गाइडलाइंस, जो सरकारी गाइडलाइंस हैं, या कोरोना से को फाइट करने के लिए वो क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक चेन जो बनी है हीरोज की, कम्युनिटी के हीरोज की, वो काफी सराहनीय एक्सपीरियंस रहा है हमारे लिए। बाकी अगर चैलेंजेस देखें तो चैलेंजेस भी आए हैं। जहां पे 5 लोग जाते थे स्टेशन, आज की डेट में एक एक करके जाते हैं, एट ए टाइम एक जना जाता है। बट इसके साथ साथ जो कंट्रीब्यूशन है,
असली पहचान इस समय हमें हुई है कि किस तरीके से कम्युनिटी साथ दे रही है, कितनी रिसेप्टिव कम्युनिटी है इस दौरान। तो हमारा जैसे ग्रिन्स, एक बीच में हमारा ऐसा समय था जब ग्रिन्स खराब हो गया, उसके अंदर का कोई पंखा नहीं चल रहा था, तो लोकल ग्रिन्स यहाँ से हमें सपोर्ट नहीं दे रहा था दिल्ली से, बट जो लोकल मैकेनिक था उसने बोला कि मैं फिक्स करता हूँ ये प्रॉब्लम जो आई है। ऐसे ही किसी ने कहा हम फेस मास्क का अरेंजमेंट कर देते हैं, या सैनिटाइजर अगर नहीं मिल रहा है तो जिस मेडिकल स्टाफ के साथ हम अपने कार्यक्रम बनाते हैं वहां उनकी सपोर्ट आई। तो ऐसे करते करते जो कम्युनिटी में जिसने जो जहां पे सपोर्ट कर सका वो सामने आया और उसने अपना सपोर्ट दिया। तो जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वो सिर्फ प्रोग्राम कंटेंट में नहीं बट ओवरऑल प्रसारण में, ओवरऑल इंश्योर करने में कि प्रसारण चलता रहे और उसमें कोई स्टॉपेज ना हो, इसमें जो हमें सपोर्ट मिला है ये भी हमारे लिए बहुत एक रेवलेशन था। सो थैंक यू। एक्चुअली कोरोना को इस मामले में तो हम थैंक यू कहेंगे क्योंकि कई चीजें हमारे सामने निकल के आई हैं। शुक्रिया जी, धन्यवाद पूजा जी। हमारे साथ विकास जी उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं सर से और जो रेगुलर स्पीकर हैं। विकास जी प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करें। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर विकास जी, बताओ। आई थिंक इट्स कमिंग। यस सर। सर कुछ बताना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बताइए सर। You can give a chat also. विकास जी अगर आवाज नहीं आ रही है तो आप चैटिंग के थ्रू अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे साथ आजमगढ़ वॉइस ऑफ आजमगढ़ से MSH बेग साहब जुड़े हुए हैं। बेग साहब आप ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम होम इस कंसेप्ट को अपने रेडियो स्टेशन पर कैसे लागू कर रहे हैं बेग साहब? आवाज आ रही है? हाँ आ रहे। हाँ, मैं सबको नमस्कार कहता हूँ। हेलो। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। गुड। ऐसा है कि सर, मतलब जितने लोग हैं मेरे सर बैठे हैं तो मैं तो सब पहले तो सर ही को कहूँगा। हमने ये सीख लिया कि भाई काम घर में रहो, चाहे बाहर रहो, चाहे ऑफिस रहो, चाहे गाड़ी में रहो, काम नहीं रुकता। काम अपनी जगह चलता रहेगा। हम चाहे जहां बैठे हो, हम हो या ना हो, तब भी काम चलता रहेगा। जितने लोग थे, चाहे वो थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते थे, एक मतलब मैं तो बहुत गांव के एरिया से बिलोंग करता हूँ, एक तरीके से बहुत छोटा सा एरिया है मेरा, लेकिन साहब छोटे छोटे जो वहाँ के जो चौकीदार के बच्चे थे वो भी ट्रेंड हो गए कि साहब किस तरीके से हमने फ़ोन पे बताया, बेटा ये चला दो जा करके, ये ऐसे कर दो वैसे कर दो। सीमा बेचारी ने, सीमा भी इत्तेफाक से फंस गई लॉकडाउन में लखनऊ के अंदर, तो मैं सीमा और वो सब लोग मिल करके, तो एक इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा कि इन फ्यूचर अब काम नहीं रुकेगा। ये तय बात है, कोरोना नहीं सिखाया, काम नहीं रुक सकता, कोरोना जाएगा, काम नहीं रुकेगा। कोरोना चाहता था काम बंद हो जाए, लेकिन हम ये कहते हैं काम नहीं बंद होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, हर बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। जरूर आपने एकदम बड़ा सही फरमाया। हमारे साथ इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से हैं शेर सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, जयपुर ऑफिस से। शेर सिंह जी, आप इसको किस एंगल से देखते हैं
आप बहुत पहले से कम्युनिटी रेडियो का जो कंसेप्ट था इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से ही शुरू हुआ। अन्ना यूनिवर्सिटी से सबसे पहली शुरुआत हुई, उसके बाद इग्नू में बहुत सारे स्टेशन बने और आपका काम भी डिस्टेंस लग। और शेर सिंह जी सर। Thank you very much, sir. Thank you, all dignitaries. Thank you very much for providing this opportunity to me. सर, वैसे तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी रेडियो प्रोग्राम इग्नू ऑफर कर रहा था और डॉक्टर डीपी सिंह जी इग्नू के साथ में और इग्नू की विभिन्न एक्टिविटीज में काफी समय से वो जुड़े हुए हैं और जब कभी इग्नू की एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए हमें नवलगढ़ या झुंझुनू क्षेत्र में आवश्यकता होती है तो डॉक्टर डीपी सिंह जी एक्टिवली हमें सपोर्ट करते हैं और विभिन्न एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट करते हैं। सर, कम्युनिटी रेडियो का कंसेप्ट बहुत अच्छा है और अभी कोविड-19 की वजह से जो पूरे विश्व में महामारी चल रही है उसमें कम्युनिटी रेडियो का कंसेप्ट बहुत ही उपयोगी है और लोकल लेवल पर ये देश के सभी नागरिकों के लिए बहुत लाभदायक है क्योंकि एक यही ऐसा माध्यम है जो हम स्थानीय स्तर पर लोगों से जुड़ सकते हैं और विभिन्न प्रकार की स्किल्स, नॉलेज अपग्रेडेशन इसके माध्यम से हम कर सकते हैं और यही एक ऐसा माध्यम है जिसको हमें सशक्त करने की आवश्यकता है और सभी जो हमारे इसमें जो कम्युनिटी रेडियो चला रहे हैं और इस मुहिम में जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं थैंक यू वेरी मच कि वो इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहे हैं और चाहे वो हमारे किसान हो, स्टूडेंट हो या और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से उनको फायदा मिल रहा है। सर, इस प्रक्रिया को मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन में काम कर रहे हैं और डिस्टेंस एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें लाखों स्टूडेंट डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आज अगर हम वर्तमान समय में देखें तो डिस्टेंस एजुकेशन 127 कंट्रीज में ये डिस्टेंस एजुकेशन चल रही है और डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और अभी वर्तमान समय में अगर हम ये देखें तो डिस्टेंस एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है जिसमें स्टूडेंट घर बैठे बैठे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अगर हम इग्नू की बात करें, हालांकि बहुत कम समय है लेकिन इग्नू की बात करें तो इग्नू भी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहा है और इग्नू के साथ में 40 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और इग्नू आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, चाहे हम प्रोग्राम्स के माध्यम से देखें या एनरोलमेंट के माध्यम से देखें तो। और अभी वर्तमान समय में अगर हम ये देखें तो इग्नू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एडमिशन, एग्जामिनेशन और कंप्लीटली प्रोग्राम ऑनलाइन चला रहा है और आज हमारे माननीय जो मानव संसाधन विकास मंत्री उन्होंने एमए हिंदी प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका प्रसारण अभी भी फेसबुक पे हो रहा है और हम लोग अभी फेसबुक के माध्यम से भी वहां देख रहे थे उस प्रोग्राम के लिए। तो ये बड़े गर्व की बात है कि मतलब है कि मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने एमए हिंदी प्रोग्राम अभी कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया है। इसके साथ साथ इग्नू के सर्टिफिकेट प्रोग्राम और डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं जो रशियन लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज है, वो भी कंप्लीटली ऑनलाइन चल रहे हैं और इग्नू धीरे धीरे अपने आप को ऑनलाइन कर रहा है क्योंकि हम ये देखेंगे कि जो इसका प्रभाव है कोविड-19 का जो प्रभाव है वो शिक्षा पर बहुत अभूतपूर्व प्रभाव पड़ेगा और हम ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन के महत्व को समझेंगे और लोग उससे जुड़ेंगे और इसी के साथ में इस तरह की जो बातें हैं वो इग्नू भी हर व्यक्ति तक जाना चाह रहा है और कम्युनिटी रेडियो भी इसी के लिए है। एक क्वेश्चन जो विकास की ओर से आया है वो है, सर से पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर श्रीधर साहब से कि इज देयर एनी इंडियन एप्लीकेशन फॉर शेयरिंग कंटेंट फॉर ब्रॉडकास्टिंग पर्पज। सर, कोई भारतीय इस तरह की एप्लीकेशन है
जो ब्रॉडकास्टिंग पर्पज से उपयोग में ली जा सकती है, विकास महापात्रा जी सर से पूछना चाह रहे हैं, श्रीधर okay. सर से। श्रीधर सर, Actually, DP Singh ji, ये attempts to have a hello, am I audible? No. जी सर। Audible. सर वीडियो नहीं आ रही, आपकी वीडियो नहीं आ रही सर, वीडियो भी ऑन करो। कैसा करेंगे? वॉइस से हेलो, मेरी वीडियो हाँ, आ रही है। आ गया वीडियो आ गया ना? हाँ जी आ गया सर, ठीक है, आ गया सर। और व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज, वो तो हमने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में, अब जो लोग बोल रहे हैं शेर सिंह साहब ने, मैंने तो शुरुआत किया था ज्ञानवाणी को व्हेन कम्युनिटी रेडियो वाज नॉट देयर। ज्ञानवाणी वाज आल्सो सपोज टू डू 40% ऑफ वर्क फॉर कम्युनिटी, ठीक है। वो देन स्लोली हमने वी फाउंड ज्ञानवाणी इज आल्सो ए व्हाइट एलिफेंट, तो इसलिए तो कम्युनिटी रेडियो कॉन्सेप्ट केम टू द कंट्री। बट इग्नू में सॉफ्टवेयर है, एनसीईआरटी में बहुत ऑडियो प्रोग्राम्स है, सीआईईटी में है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एससीईआरटी जयपुर में बहुत ऑडियो सॉफ्टवेयर है फॉर चिल्ड्रन के लिए। ऑल दीज थिंग्स कैन बी ब्रॉडकास्ट बाय कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस free of cost, and they should also give it free of cost. MHRD is a partner in giving you a license. But to answer a specific question to Mahapatra, there is presently no sharing application content. We started Ek Dunia Anek Awaaz only for that reason to sharing, and unfortunately they did not maintain a good bandwidth or good resolution, and audio programs were very bad, and it had died its own thing. And there are some private attempts to do audio sharing. Presently, there is no such audio sharing platform. I think within a month or two it will come. हमारे साथ में बिहार गोपालगंज से कृपा शंकर जी जुड़े हुए हैं। कृपा शंकर जी, आप ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम होम इस कंसेप्ट को किस तरीके से अपना रहे हैं? जैसा सर ने गाइड करा उसके हिसाब से आप किस प्रकार से वहां पर ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम होम और कोविड-19 के खतरे को देखते हुए क्या सावधानियां बरत रहे हैं? कृपा शंकर जी। जी बोलिए कृपा शंकर जी। कृपा शंकर जी बोलिए, आपकी आवाज म्यूट कर लीजिए पहले। कृपा शंकर जी आवाज नहीं आ रही आपकी। माइक को मैंने अनम्यूटेड कर दिया। कृपा शंकर जी नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही कृपा शंकर जी। उनकी आवाज आए तब तक मैं जितेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जितेंद्र जी आप बोलिए। जितेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ये मेरी आवाज सबको आ रही है? हेलो, बोलिए बोलिए। मैं पूजा जी की बात मैं पूजा जी की बात में एक बात ऐड करना चाहता हूं कि हमारे कुछ फोक सिंगर्स अब कोविड के दौरान ऑनलाइन आ गए हैं और वो लोग अब यूट्यूबर कहलाने लगे हैं। हालांकि अभी यूज कर रहा है कोविड के दौरान यूट्यूब का और फेसबुक का। कोविड से वो लोग अब धीरे धीरे मंडली से निकल के यूट्यूब और उस पर आ चुके हैं, फेसबुक। बहुत अच्छा है ये तो। उनको भी नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स अब मिलने चाहिए। इट्स हाई टाइम, सो इट्स गुड। बट क्या इनका म्यूजिक जो है वो कॉपीराइट फ्री है?
ओरिजिनल म्यूजिक, ओरिजिनल लोकगीत जो ये लोग खुद बनाते हैं कंटेंट के हिसाब से। जितेंद्र, अगर ये है और हिंदी मतलब ऐसे है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर यूज कर सकते हैं अपने स्टेशंस में, उनको क्रेडिट देते हुए हम इस्तेमाल कर लेंगे, इससे उनको प्रमोशन मिल जाती है और हम लोगों को एक्स्ट्रा कंटेंट मिल जाता है। श्रीराम यादव नाम से आप यूट्यूब जी श्रीराम यादव नाम से आप अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो बुंदेली गीत गाने वाले हैं वो। अच्छा, सब्सक्राइबर नहीं हुए अभी उनके। रेडियो स्टेशन का ऑनलाइन लर्निंग के लिए क्या प्रोग्राम है और किस प्रकार कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ऑनलाइन लर्निंग में अपनी सहभागिता निभा सकते हैं? मैं सर के पास में ही जानना चाहूंगा कि सर इस बारे में गाइड करें कि ऑनलाइन लर्निंग में कम्युनिटी रेडियो किस प्रकार अपनी सहभागिता कर सकता है और क्या भूमिका निभा सकता है? सिंह साहब, ऑनलाइन लर्निंग में most of the people except the Indira Gandhi University, online learning means the same teacher will come and give the same textbook है वही रीड करता है, ठीक है, the same lecture is being given। वो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ऑनलाइन लर्निंग का वो कंटेंट का लोकल फ्लेवर, लोकल डायलेक्ट, लोकल म्यूजिक करके थोड़ा वो उसका अडेप्ट कर सकता है, ऑनलाइन लर्निंग में मदद कर सकता है, so that online learning will be more useful। Community radio should be able to adapt the lectures of the teachers or college professors or school teachers and adapt it into a very very interesting format। ये होगा, there will be definitely use। If you just give the same lecture, after nobody will tune to radio। आज अभी मैसेज मिल रहा है 25 तारीख से फ्लाइट्स भी शुरू हो रहा है इंडिया में। That means another 1 month में तो there won't be any online learning, there won't be any Zoom conference। Again people will start face-to-face conference। So unless you make the programs interesting। अच्छा, जितेंद्र का एक I wanted to say something। Soon there will be one platform for India where you can download, but download also will be revenue sharing। Nothing will be allowed as a free download। Maybe you charge 10 paise or 1 rupee। The folk artists must get that rupee, ठीक है। Don't ask anything। अभी पूजा मैडम ने कहा था, is it free, royalty free, I can broadcast, okay। Slowly we should now change our concept into some payment, not real good payment, some payment। And there must be one good platform where you share it, you will know who downloaded it। And then it can also be, supposing DP Singh का radio station में कुछ folk music है, Pooja Murada has got folk music, both of them are available on one platform। DP Singh downloads Pooja Murada for 5 hours, Pooja Murada downloads DP Singh for 4 hours। So there is only 1 hour difference के लिए DP Singh will get about 100 रुपया। But there is program sharing, but DP Singh knows Pooja Murada downloaded it, Pooja Murada knows DP Singh has downloaded it, okay? So that should be a platform, ना। YouTube में what do you know? Only you know the number, इतना hit है, and the money is going to YouTube। So just to add to sir's thought, अब पूरा देश आत्मनिर्भरता की बात अगर कर रहा है, so why not community radios? DP सिंह जी, आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का जैसे कहा, ट्रेनिंग का, मुझे ऐसे लगता है कि जितना कंटेंट और जितना नॉलेज हम CRs के पास खुद है, so अगर एक प्लेटफॉर्म ऐसा बन जाए जहां पे it is not mandatory, आप अपनी इच्छा से आए, we can run the course like what you're doing on webinars। So similarly, the courses can be run, people can contribute towards different lectures, different activities। Sir is there,
आई मीन पूरा खान है नॉलेज का, सो दैट कैन आल्सो बी इनिशिएटेड विद इन द सेक्टर. हमको वी मे नॉट एक्चुअली हैव टू देन गो आउट कि उसको कैसे हम लोकल अपने उसके लिए अडेप्ट करें. इफ वी ऑल कम टुगेदर एंड डू दिस. Similarly, what sir just suggested, the YouTube model. If there are, ideas like that, एक अगर शुरुआत हो जाए तो आपका एक सिस्टम बनने की बात है. एक सिस्टम बन जाए. एक दुनिया अनेक आवाज शुरुआत हुई थी, but it's now no more functioning. We need a repository. We need एक जगह जहां पे आप ले और दे सकते हैं content. Yeah, that's a good idea, DP Singh ji. Of course, we will discuss it privately, all of us. But a course which is contributed by every radio station. Also, you all of you, अभी जितेंद्र ने कहा about the folk music बुंदेलखंड का. I know DP Singh का area में how much folk music मेवात. So you also try to teach this folk music to other people through the radio. It is a dying. Folk music is dying. Folk. But आपका रेडियो में वो आर्टिस्ट का बुला के let them also teach online teaching, on community radio teaching. What is that? बुंदेलखंड में तो ये क्या है? मृगनागिनी सीरियल में आया था एक सॉन्ग. ओके. एक राजस्थान is famous for that कालबेलिया. Okay. All these things, Mirasi. So you also teach Mirasi language. Mirasi songs, how to start, what is the first lesson, second lesson, third lesson. कालबेलिया के लिए कर दीजिए. I think this will be a good idea to use community radio for online teaching of our traditional and dying art. सर अच्छा रहेगा और हमारी जो हेरिटेज है वो बची रह जाएगी. प्रिजर्वेशन भी. I am doing it in Tamil. I am doing it in Tamil. Some person is teaching that folk arts, 40 lectures, how to start, how to make that instrument from the locally available bamboo. So something is going on in the radio में. What is the first lesson? How to start the invocation कैसा करता है उन लोगों ने. How that argument will come in between. How the drama is in between. वो teach कर रहा है. So we are trying one folk art. Of course, paisa, if the government gives, it will be good. For the folk artists also, to give an incentive. Instead of like just writing a book on folk music, it will be an audio book of folk music. Community radio can do that. बिल्कुल सर, एकदम अच्छा आइडिया है और जरूर इस पर हम काम करेंगे. हमारे साथ कर्नाटक से शिव शंकर जी जुड़े हुए हैं. शिव शंकर जी फ्रॉम कर्नाटका. एनी क्वेश्चन शिव शंकर जी? प्लीज आस्क शिव शंकर जी. उनका आवाज भी प्रॉब्लम हो रही है. और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो अपने माइक को प्लीज अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें. तो आपको कोई प्रश्न पूछना है सर से या तो प्लीज. कंटेंट शेयरिंग वाला जो प्लेटफॉर्म बनाने की बात हो रही है, हमारे पास 2 एसोसिएशन है ऑलरेडी, एक फेडरेशन और एक एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो. इन दोनों में से कोई भी एक इस काम को कर सकता है ताकि और I don't want to publicize. सुनिए, मैंने तो अलग से ईमेल भेजा है सबको. शुरू हो रहा है जुलाई में. ठीक है. वो दोनों एसोसिएशन का सपोर्ट होगा, अच्छा होगा. ठीक है. वो but nothing is going to be free. You will also get money sharing. Something is happening. Let's see. चंदन सारण जी, आप टीचर एजुकेशन के फील्ड के आदमी हैं. इसमें कुछ जो ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम होम, आपके नजदीक जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है उससे आप जुड़े रहते हैं, और किस प्रकार आप कम्युनिटी रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम होम के कंसेप्ट को देख रहे हैं? डॉक्टर चंदन सारण.
माइक इज म्यूटेड है। आवाज की प्रॉब्लम। किसी को और जो प्रश्न पूछना हो, आज की जो एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छी चर्चा रही, और इस विषय की सभी को इस समय जरूरत भी है। और कोरोना की जो इस समय की एक तकलीफ है, उसमें ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम होम ही एक मात्र ऐसा उपाय है। और किसी को कोई ऐसी क्वेरी क्वेश्चन पूछना हो, प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें, या अपने चैट के थ्रू अपने प्रश्न को भेजें। कोई कोस्टल एरिया से जुड़ा हुआ है क्या सर हमारे साथ आज पार्टिसिपेंट्स में? और वहाँ की कुछ वहाँ पे एरिया से कोई है तूफान, विकास महापात्रा जी शायद हाथ खड़ा कर रहे हैं। महापात्रा जी, यस, कोस्टल एरिया से विकास महापात्रा जी। विकास जी, वहाँ पे क्या सिचुएशन है अभी फिलहाल तूफान की, और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन किस तरह ब्रॉडकास्ट कर रहा है इस विषय में? उनकी आवाज की वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है अभी। विकास महापात्रा जी, पहले भी वॉइस की प्रॉब्लम उनको हो रही थी। अगर वॉइस की प्रॉब्लम नहीं है तो विकास जी अपनी बात कहिएगा। विकास जी, हमारे साथ रेडियो मेवात से इमरान खान भी जुड़े हुए हैं। इमरान खान जी, आप किस प्रकार रेडियो मेवात पर ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम होम का उपयोग कर रहे हैं, और इस बारे में आप का क्या एक्सपीरियंस है? इमरान खान, रेडियो मेवात। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जितने भी पार्टिसिपेट हमारे साथ कर रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और सर, हम जब से कोविड-19 महामारी ने हमारे देश में पैर पसारे हैं, जब ही से हम लगातार कोविड-19 के ऊपर लगातार लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और हम सर 1.5 घंटा शुरू में लाइव करते थे लगातार, और हमने 2 शिफ्ट बनाई थी अलग अलग, जो जितने भी हमारे काम कर रहे हैं कम्युनिटी रेडियो में। और उनमें सर हम ऑनलाइन के माध्यम से डीसी साहब और अपने सीएमओ साहब, और जो अपने मेडिकल हॉस्पिटल सईद हसन खां मेवाती हॉस्पिटल हमारे यहाँ, जिसको कोविड-19 घोषित कर दिया था सर, उसके जो मीडिया प्रवक्ता थे महासिंह, और वहाँ की डायरेक्टर थी डॉक्टर यामिनी, उनको हम फोन लाइन के माध्यम से जोड़ते थे सर। और हम क्या करते थे, यहाँ एक बड़ा हम कहें प्रोपेगेंडा चला था, या हम रूमर्स कहें कि जमातों को लेकर जो टीवी चैनलों पर न्यूज चलाई थी, तो उस टाइम हमारे यहाँ बहुत सारी जमातें ठहरी हुई थी सर। तो उनको लेकर भी लोगों में एक ये भ्रम था कि क्या वाकई में ये लोग कोरोना वायरस फैला रहे हैं। तो इस तरीका का जब अफवाह चला था टीवी चैनलों पर, तो उस टाइम हमने डीसी साहब से बाइट ली, सर क्या इस तरीका से है। तो डीसी साहब ने हमें रात में ही फोन करके उस पर बताया, ऐसा कुछ नहीं है जिस तरीका से बताया जा रहा है। और सर हम इस पे लगातार कम्युनिटी के लोगों से भी हमने बातें की हैं सर, फोन लाइन के माध्यम से। और हम सर मास्क भी बनवा रहे हैं जी, फेस मास्क, जो हमारे कुछ ग्रुप से थे, 30 महिलाओं के ग्रुप बना रखे थे हमने, जिसमें हमारे एक प्रोग्राम चलता था हिंसा को नो, उसके लिए हमने प्रोग्राम बनाए थे। तो उनसे हमने 30 ग्रुपों में ही हमने कपड़ा दिया है सर, जो हम उन महिलाओं से मास्क बनवा रहे हैं, ताकि इस टाइम लोगों की मेवात जो इलाका है एक अति पिछड़ा जिला माना जाता है, तो यहाँ रोजगार का साधन नहीं है। और इस समय तो पूरी दुनिया ही एक घरों में कैद हो गई है, बंद हो गई है। ऐसे में हमने सोचा कि जो हमारी ग्रुप की महिलाएं हैं उनकी कुछ इनकम सोर्स भी हो जाए। तो हमने उनके लिए कपड़ा दिया, उनसे मास्क बनवा रहे हैं, और हम उन जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए मास्क फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर। जी, बहुत ही बढ़िया, आप अच्छा काम कर रहे हैं इमरान खान जी। हमारे साथ अगर गोपालगंज से आवाज यहाँ तक पहुंच रही है तो कृपा शंकर जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, और अपनी आवाज को थोड़ा बुलंद कर पहुंचे। कृपा जी, आपकी आवाज शायद फिर कुछ क्या पता आज जी जितेंद्र जी बोलिएगा।
मैं यशवंत जी से बात करना चाहता हूँ। यशवंत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यशवंत जी, जी यशवंत जी, आपसे एक आग्रह ये था कि कोविड-19 के दौरान ना एक घर में जो एक लोगों को एक डिप्रेशन टाइप का प्रॉब्लम हुई थी। क्या आपके रेडियो स्टेशन ने कुछ ऐसा आध्यात्म टाइप का या कुछ मेडिटेशन टाइप का प्रोग्राम बनाया हो तो कृपया आप शेयर करें हमारे साथ, ताकि हम भी अपने रेडियो पे चला सकें। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे शिवानी बहन को सब जानते होंगे जो टीवी चैनलों में आते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे डिप्रेशन पे प्रोग्राम रिकॉर्ड किए थे, तो उसका ऑडियो मैं शेयर कर दूंगा। हमारी एफसीआरएस के पोर्टल पे हम शेयर कर देंगे। जी बिल्कुल। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछ अंकित, जो ऑनरेबल स्पीकर सर हैं, श्रीधर सर और अंकित मुरादा जी। जी सर, एक एक्सपीरियंस था जी, जो प्रवासी। जी आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलिएगा। हमारे अंकित जी शायद आवाज नहीं आ रही, लेकिन मैं उनका बात कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे प्रवासी मजदूरों के फोन भी कम्युनिटी रेडियो पे काफी आए थे, जिनको हम लोग ने नंबर शेयर किया था कि आप किस तरह से अपने वापस राज्य में आ सकते हैं। अंकित, अगर आप बता पाओ तो बता दीजिए, अगर आपकी आवाज आ रही है तो। हेलो, सुन पा रहे हैं? वो आपने प्रवासी मजदूरों पे जी सर, आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो नियमित श्रोता थे तो कुछ काम से वो बाहर चले गए थे, इस लॉकडाउन से पहले चले गए थे। और ये बात है छत्तीसगढ़ की। तो वहाँ पर वह लोग फंस चुके थे और कह रहे थे कि मतलब यहाँ से भी कोई मदद नहीं मिल रही है, तो हम कैसे घर आएं। तो इसके लिए उन्होंने पहले काफी दिन से वो है परेशान हो गए थे। उसके बाद में सीधे तौर पर हमारे जो किसानवाड़ी का नंबर है, रेडियो केंद्र का नंबर है, उस पर उन्होंने संपर्क किया और जो भोपाल के कुछ नंबर थे उनके लिए हमने उनको वह नंबर दिए। और फिर बाद में वह कुछ समय बाद उन्होंने उस नंबर पर संपर्क किया। उसके बाद में अपने मध्य प्रदेश में अपने घर पर सिरोंज क्षेत्र में आ गए। और इसके अलावा मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि जैसे मान लो कुछ संस्थाएं भी थी हम यहाँ सिरोंज क्षेत्र में, तो उन संस्थाओं ने हमसे संपर्क किया। और उस टाइम चूंकि मास्क की बहुत ज़्यादा कमी थी और यहाँ पर कहें कि मास्क वो मिल तो रहे थे, ये नहीं कह सकते कि नहीं मिल रहे थे, लेकिन बहुत कम मात्रा में मिल रहे थे। तो उन संस्थाओं ने हमसे भी संपर्क किया और हम लोगों के रेडियो के माध्यम से भी प्रसारण किया। और उन्होंने सिरोंज क्षेत्र ही नहीं बल्कि आसपास के जो गांव थे वहां पर भी मास्क का वितरण किया। और कुछ संस्थाएं ऐसी भी थीं जो बाहर से लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं या फिर जो राजस्थान से हैं, दिल्ली से हैं, जो काम करके वापस आ रहे हैं, तो उनके लिए भी खाने की पीने की व्यवस्था और भी कुछ मैं थोड़ा और बताना चाहूँगा कि जब से कोरोना का प्रकोप हुआ था तभी तभी से ही हम लोगों ने प्रोग्रामों का प्रसारण शुरू कर दिया था। और प्रोग्रामों के माध्यम से खासकर सबसे पहले हमने यहाँ के डॉक्टरों से संपर्क किया। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अब उसी टाइम लॉकडाउन पूर्ण रूप से लग गया था और हमें भी एक निश्चित दूरी बनाकर रखना थी। और अगर हम ही वह निश्चित दूरी बनाकर नहीं रखते तो हम दूसरों में फिर क्या सलाह देते। इसके लिए हमने यहाँ के जो प्रशासन है, अधिकारी है, उन सभी से फोन कॉल के माध्यम से जुड़ना शुरू किया। और यहाँ के चाहे एमएलए की बात कहें, और इन लोगों ने अपने कुछ नंबर भी शेयर किए थे। और यहाँ के एमएलए हैं जो या फिर एसडीएम हैं, उन्होंने भी कुछ नंबर लोगों के लिए बताए हुए थे।
और जो जिन लोगों के लिए मदद नहीं मिल पा रही थी वह रेडियो के प्रोग्राम के माध्यम से या फिर वह नंबर उन पर संपर्क करते थे। और इतनी बड़ी भूमिका कि सीधे तौर पर अधिकारी हैं, चाहे एमएलए हैं, चाहे प्रशासन का कोई भी, ये सीधे तौर पर उनका संवाद हो रहा था और उनके लिए मदद भी उपलब्ध हो रही थी। और जी, आपने वाकई बहुत अच्छा काम कर एक रहे मिनट हैं हमारे साथ। और इस समय में सर इस समय में समय कम है। सर बताना चाहूंगा क्योंकि इस लॉकडाउन के समय में लोग भी कैसे मतलब टाइम पास करें, तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी शुरू किया था कि इस लॉकडाउन के समय में चूंकि घर से कोई निकल नहीं पा रहा था, तो इस लॉकडाउन के समय में कैसे अपना टाइम पास करें। तो इसके लिए हम उस हम पर लोगों ने डिस्कशन करेंगे। अंकित जी हमारे साथ समय कम है। 2 मिनट का समय हम देना चाह रहे हैं। हीराखंड रेडियो से पिंकी प्रधान जी हैं और माइग्रेंट लेबर के साथ में उन्होंने जो वहां पर जो काम करा है उस पर कुछ बोलना चाह रही हैं। पिंकी प्रधान जी 2 मिनट का समय प्लीज, क्योंकि समय काफी हो गया। और हम जो जी सर, जी पिंकी सर, प्रधान जी, मैं ऑडिबल सर? यस, हाँ बोलिए। आप सभी को मेरा नमस्कार सर। मैं पहली बार आई हूँ आपके यहाँ पे। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ रेडियो हीराखंड ओडिशा संबलपुर की। और मेरे सर जो डायरेक्टर विकास सर से आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है शायद कोस्टल ओडिशा से, तो मैं उनके रिप्रेजेंट कर रही हूँ उनको। तो सर ये जो बोल रहे थे अभी अंकित जी कि रेडियो कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से जो जो उन्होंने बोला उस सब का काम भी हमने किया सर। प्रवासी श्रमिक यहाँ पे ओडिशा में छत्तीसगढ़ पश्चिम बंग से आए हुए बहुत सारे फंसे हुए थे सर, जिनको खाना नहीं मिल रहा था। जो प्रशासन की तरफ से जो खाना दिया जा रहा था वो खाना बहुत मुश्किल से मिल रहा था कुछ लोगों को जिनका नाम रजिस्टर नहीं हुआ था। तो वो लोग हमें फोन किए और हमने जाकर उन लोगों को खाना उपलब्ध करवाया, प्रशासन से बात की, उनकी रहने की और खाने की व्यवस्था भी की सर। और हमने वो यहाँ के जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सब से भी बात की, और एमएलए हमारे जो हैं यहाँ के वो सब भी आके उन सबको हेल्प किए। उसके साथ सर हमने एक हेल्पलाइन नंबर ऑनलाइन में दिया था, कम्युनिटी रेडियो में दिया था हेल्पलाइन नंबर, जिससे वो लोग हमें कांटेक्ट करते थे। और जहाँ भी बहुत सारे मजदूर यहाँ से बहुत सारी कॉल आई, उसके साथ साथ हमने ये भी किया था कि जो बाहर के जो चिड़िया पंछी जानवर हैं उन सब के लिए खाने का प्रबंध कीजिए या पानी का भी प्रबंध करिए अपने घर में। जो जितना भी जैसे कि छोटा बाउल हो बड़ा हो कटोरी रख के पानी का या खाने का दीजिए। उसका भी प्रशासन ने वो जो हमने रेडियो में प्रोग्राम चलाई सर उसको सुनकर प्रशासनिक अधिकारी आगे आए और सभी ने आकर नोडल ऑफिसर खुद आकर 150 बैरल जो पानी का होता है वो सब लाके दिए। तो ये सब काम कम्युनिटी रेडियो की वजह से हो पाया सर। यहाँ कम्युनिटी रेडियो से बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ, मैं यही बताना चाह रही थी सर। आप बहुत ही अच्छा काम करा आपने। और जो मूक प्राणी पक्षी वगैरह थे उनके लिए भी आपने ध्यान रखा। मैं सभी की इजाजत से कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए मैं हमारे ऑनरेबल सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। चाहूंगा कि वो अपना कंक्लूडिंग अपना रिमार्क सर प्लीज आपकी ऑडियो की आवाज नहीं आ रही मुझे। Hello, we are concluding, madam. Pinky madam, we are concluding. Okay. थैंक यू सर, थैंक यू। टाइम हो रहा है। अच्छा है, होप कल ज्यादा नुकसान नहीं होगा। सर हेलो थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, आपने हमें मौका दिया ये बोलने के लिए, प्लेटफॉर्म दिया और बहुत कुछ बातें हमने सीखी। मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन की थी और बहुत सारी बातें मैं जानी भी थी कि कैसे कम्युनिटी रेडियो का मतलब प्रसार हो रहा है, बाकी सब एरिया में कैसे कर रहे हैं। बहुत ठीक है मैडम। आपका ऑडियो को म्यूट कर दो मैडम। ओके, थैंक यू डॉक्टर सिंह साहब। You gave us a very good opportunity, and now I find around 59 people are participating. It's a very good initiative that you are taking, and let us take Jitendra's suggestion, Pooja's suggestions, etc., to make a standard platform for sharing our programs.
And also, please think to broadcast from home when there is a cyclone, when there is a COVID. And then also, this will also good for the health of community radio, because you will spend less on staff and you will spend less money. So the economics of community radio will be good if you start broadcasting from home, which Jitendra was telling that they are doing it for the past 4 or 5 years. But we should find out a way by which complete broadcasting should be done from your home, not only sending it by Google Drive or Gmail, etc. And let us think in that direction. There is no one good medicine for COVID. Similarly, there is no one good model for broadcast from home. Everybody has to discover their own method of models. Thank you, Dr. Singh Saab. थैंक यू सर, आपने बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत अच्छी जानकारी आज आपने सभी के साथ शेयर की, और निश्चित रूप से इन से सभी को फायदा होगा। और रेडियो केबलवाणी भी इसी तरीके से ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम होम अपनी ब्रॉडकास्ट माई सेल्फ एक ऐप के जरिए इस प्रकार करती है, जिसमें टाइम के साथ में शेड्यूल कर देते हैं और वो सारा उसका एक वेब लिंक हमने अपने ब्रॉडकास्टिंग कंप्यूटर पर दे रखा है। थैंक यू सर, आप सभी ने इतना समय दिया, इतनी महत्वपूर्ण बातें कही जो सारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू श्रीधर सर, थैंक यू सभी को। थैंक यू सर। थैंक यू, गुड बाय। थैंक यू।